Hello students, we have started chapter animal fibers in our last video and we have completed different type of clothing, natural fibers and wool. Today we will complete sources of wool and extraction of wool. In sources of wool we have completed source of wool from sheep here, and we have done some Indian breeds of sheep, and except this we also have completed this merino sheep from Spain. Today we will discuss about the other sources of wool from other animals. So here some pictures are given which are wool yielding animals. First, llama, alpaca and camel. These three belongs to same family, that is called camel family. Here the wool obtained from these members means camel family members. This is also very soft, warm and lightweight wool. Now there is another extremely soft and easy to dye fiber, that is called cashmere. This fiber is obtained from the goats which are found in the China and Tibet mountains or in the valleys of Kashmir. Another category of goat, that is wool, that is obtained from rabbit. The name of rabbit is Angora rabbit, and the wool obtained from Angora rabbit is Angora wool. This wool is soft, fluffy and warm. This rabbit is originally found in Ankara region of Turkey. Then there is another goat named Angora goat. The fiber obtained from the Angora goat is spun into mohair. This is extremely lightweight wool and it is found in the Jammu and Kashmir hills. Next, the underhair of Kashmiri goat are fine and soft. They are woven to fine shawls called Pashmina shawls. So Pashmina shawls are obtained from the Kashmiri goats from their underhairs, and mohair is obtained from the Angora goats. These are found in Jammu and Kashmir. Then Angora wool is obtained from the Angora rabbit. And I have also told you that easily dyeable fiber is cashmere. Okay, keep in mind all these points. Then another category is yak. Yak is a animal which have long hair on its body. Here it is found in the Tibet and Ladakh. So its hair are also used to make wool. Now let's move to extraction of wool. So how wool is extracted from the sheep? The very first step in this is shearing. Shearing, the process of removal of fleece from the animal is called shearing. Fleece, I have told you in our last video that obtaining the wool coat from the sheep's body is called fleece. See like this. Here a man is
doing shearing of sheep means cutting the hair of sheep along with the thin layer of skin in one piece. It is called shearing. तो शेयरिंग जो है उसी तरह से है जैसे हम अपना हेयर कट करवाते हैं। तो शेयरिंग जो है मोस्टली समर सीजन में होती है, क्योंकि उस टाइम में शीप को हेयर की ज़रूरत मतलब गर्मी फील होती है, इसलिए उस टाइम में शेयरिंग करना बेस्ट होता है और मोस्टली उसी टाइम में ये होती है। तो मैंने आपको बताया कि मैनुअल जो है हम जब इसकी शेयरिंग करते हैं तो वो रेज़र और ब्लेड के साथ स्पेशल क्लिपर जो होता है उसके साथ जो उसका हेयर कट करते हैं। अब जो है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने विदाउट शेयरिंग जो है इसके जो वूल जो है उसको निकाला। इसके लिए एक अलग से टेक्निक जो है उन्होंने फॉलो की, जिसके अंदर जो शीप होती है उसकी बॉडी के अंदर स्पेशल हार्मोन जो है उनको इंजेक्ट किया जाता है और उसे अच्छी तरह से अच्छे से टाइटली जो है हेयर नेट के अंदर बांध दिया जाता है और 3 वीक्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली वो जो अपनी ऊपर वाली स्किन जो है पूरी शेड कर देती है, जिसके अंदर द डेड स्किन जो अलोंग विद हेयर। तो दिस इज कॉल्ड विदाउट शेयरिंग प्रोसेस। नाउ द सेकंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है वॉशिंग। ये जो वॉशिंग जो होती है, जो हमें फ्लीस मिली है शीप की, उसको हमने वॉश करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डर्ट होगी, डस्ट होगी, ग्रीस होगी। इन सबको रिमूव करने के लिए वॉशिंग की जाती है, जिसको हम स्कोरिंग कहते हैं, और ये क्या है, मशीन्स के अंदर की जाती है। आफ्टर दैट देयर इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब सॉर्टिंग भी होता है। इसमें क्या होता है, जो वूल है उसको हम सॉर्ट करते हैं, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके कलर और टेक्सचर, इन सब क्वालिटीज पे डिपेंड करते हुए हम उनको अलग अलग करते हैं। तो विथ द इसलिए करते हैं एंड कि उसको हम आसानी से डाई कर सकें, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है वो जो शीप के हेयर का वो ब्राउन और क्रीम मोस्टली होता है। तो हमें वूल जो है डिफरेंट कलर में चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं। तो इसके बाद क्या है, डाइंग। अब डाइंग के बाद हम उसे ड्राई करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो वूल है उसको हम रोलर्स के अंदर करते हैं। किस लिए, ताकि उसके अंदर जो है वाटर जो है अच्छे से स्क्वीज हो जाए और उसको हम फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। देन द वूल इज वेड एंड पैक्ड इनटू बेल्स। बड़े बड़े बेल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। फिर द बेल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स वेयर दे आर प्रोसेस्ड फर्दर। तो आगे का प्रोसेस क्या है, ये जो उससे क्या होगा, अभी हमारे पास जो है रफ फाइबर है, तो इससे फिर हम बनाएंगे यार्न। तो यार्न को बाद में हम चेंज करेंगे क्लॉथ के अंदर बाय वीविंग। तो कहता है द क्वालिटी ऑफ वूल वेरीज फ्रॉम वन ब्रीड ऑफ शीप टू अनदर। ये हमने पहले भी देखा जब हमने टेबल किया था कि अलग अलग क्वालिटी की वूल जो है अलग अलग शीप से हमें मिलती है। द क्वालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, हम कौन सी चीज़ों का, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे कि जो थिकनेस है, लेंथ है, शाइन कैसा है, कि स्ट्रेंथ कैसी है, एंड कलर ऑफ द फाइबर। ये फाइबर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है उसकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, उसके ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर की फॉर्म में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया था शेयरिंग। ये मैन क्या कर रहा है, उसकी शेयरिंग कर रहा है, मैनुअली हम इसे बोल रहे हैं विद रेजर एंड ब्लेड के साथ। अब इसके बाद जो है ये फर्स्ट स्टेप हुआ, द शीप आर शेयर्ड टू रिमूव द फ्लीस। नेक्स्ट जो है, फ्लीस इज बेल्ड फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मिल्स। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि बड़े बड़े बेल्स बना के मिल्स के अंदर भेजा जाता है। और सेकंड स्टेप क्या था,
स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में मैंने आपको बताया क्या होता है, वॉशिंग होता है, ये मशीन्स के थ्रू होता है। अब वॉशिंग के बाद हमने आपको बताया था कि ग्रेडिंग होनी है। तो ग्रेडिंग में तो ग्रेडिंग से पहले उसको कार्डिंग मशीन्स में डाला जाता है, जिसमें कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लूज वूल होती है फाइबर को, उसको शीट में और स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो शीट्स होते हैं, इसको ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। इस तरह से ये जो यार्न है, तो द शीट इज ट्विस्टेड इनटू अ रोप कॉल्ड स्लीवर, से स्लीवर बोलते हैं। Then the sliver is stretched and twisted into thin yarn, उसको ट्विस्ट करके थिन yarn में चेंज करता है। This yarn is worn for the bales of the wool, तो इस तरह से इसके बाद इसमें वूल बनती है। तो हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर 3rd रैंक है इसमें वूल ऑब्टेनिंग में। सबसे पहले हमारा चाइना और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, और however the न्यूजीलैंड शीप आर नोन टू यील्ड द वेस्ट वूल। आपको ये सारे क्लिप्स जो हैं इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि 1 वर्ड आंसर जो है यहाँ से बहुत सारे निकलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि वेस्ट वूल जो है हमें कहाँ से मिलती है, तो आप बोल सकते हो न्यूजीलैंड की शीप से। और इंडिया का रैंक कौन सा है, 3rd रैंक। इस तरह से आपको सारी चीज़ों को रीडिंग जो है, आज हमने 46 एंड 47 पेज को किया है, और यहाँ तक हमने कर लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। तो आपने अच्छी तरह से ये दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है। ये जो पैरा है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनके नेम जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन सी वूल जो है कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, और किस तरह की उसकी क्वालिटी होती है। तो आई होप कि आप ये सारा रीड करोगे और समझदारी के साथ पढ़ोगे। थैंक यू। दिस इज़ फॉर द डे। गुड डे।